آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ایران پر حملہ فائنلائز کر دیا گیا ہے۔ US کے جنرل کریلا اور اسرائیلی جنرل کے درمیان میٹنگ ہوئی اور اس میں اسرائیل نے US کو ایران پر حملے کے تمام نقشے مہیا کر دیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرانے کے لیے امریکہ کے بیک پر کھڑ رہا ہے اور کوشش ہے اسرائیل کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران پر حملہ ہو۔ آنے والے دنوں میں ہر ممکن نظر آ رہا ہے کہ ایران پر حملہ 2 دن بعد ہو، 8 دن بعد ہو، 1 ماہ بعد ہو، 2 ماہ بعد ہو، ضرور ہونے والا ہے، کیونکہ جو خفیہ طاقتیں ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو کھیل لیا ہے اور خاص کر اسرائیل جو سوچ رہا ہے اور چاہ رہا ہے اور اس نے اپنی جال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طریقے سے جکڑا ہے اور اس سے یہ فیصلہ کروانے جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایران کو تباہ کرنے کی پالیسی ہے اور اسرائیل اس صورت میں ایران پر امریکہ کے تھرو حملہ کرا کر امریکہ کے بیک پہ کھڑنا چاہتا ہے۔ واضح کرتا چلوں کہ اسرائیل نے جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں کی ہے، غزہ سے لے کر بیروت اور شام تمام کنٹریز میں یہ بمباری کر رہا ہے، اور اب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اور اپنے چکر ویو میں پھنسا رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑی غلطی کرنے والے ہیں اور یہ غلطی کروانے میں اسرائیل ان کو دھکا دے رہا ہے۔ واضح کرتا چلوں کہ ایران نے بھی تیاری پوری کی ہوئی ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو جواب دینے کے لیے بالکل الرٹ ہے۔ امریکی جنرل کریلا اور اسرائیلی آرمی چیف کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کریں گے، اور حملے کے بعد ہونے والی صورتحال پر بھی خاص کر امریکہ میں جو صورتحال بنے گی یا اسرائیل میں جو صورتحال بنے گی اور مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال بنے گی، اس پر بھی ڈسکس کی گئی ہے اور اس حملے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے، اور تب جا کر امریکہ اپنی بیسز کو مضبوط کرنے کے لیے F-16، F-47، B-2، B-52 بمبار اور دوسرے بڑے پیمانے پر ہتھیار وہاں انڈین اوشن میں کارسیا بیسز پر لے آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طریقے سے چکر ویو بنا کر اسرائیل امریکہ کو دھکا دے رہا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حال کل مارکیٹ کا کیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پوری دنیا کی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ لڑائی چھیڑ دی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد اس نے جو ٹیرف عائد کیا ہے، اس میں بڑی کمپنیاں جس میں ایپل فون، آئی فون، جاپان کی ٹویٹا اور بھی بہت بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پھنس گئی ہیں۔ کل کچھ یوں ہوا کہ آپ تصویر میں دیکھیے کہ اتنی کریش ہوا جیسے یہ مارکیٹ کا آغاز ہوا تو اس کے بعد اربوں ڈالر لوگوں کے ڈوب گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ امریکی صدر نے ایسا جھٹکا دیا پوری کنٹریز کو اور پوری دنیا کے تقریباً تمام ممالک کی کمپنیوں سے جنگ چھیڑ دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد اب مختلف ممالک اس کو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ کینیڈا بھی اس پر ٹیرف عائد کرنے جا رہا ہے، یورپ بھی اس کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے، اور جہاں امریکہ کی
यानी इकॉनमी क्रैश कर रही है, आप अंदाजा करें। और जो ट्रेड वार डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया में जो असरात पड़ने वाले हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तकरीबन 200 ममालिक से ये टैरिफ जंग छेड़ दी है। इसके जवाब देने के लिए चाइना मैदान में है। चाइना ने जो दुनिया भर के बड़े बड़े सीईओज हैं, उनको पिछले हफ्ते में बुलाया था और उनसे बात की थी कि यहाँ जो सूरत हाल बनने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप वार छेड़ चुके हैं, तो आए हम आपको परवेट करते हैं और आप आकर सरमायाकारी करें। तो इस सूरत हाल में जहां अमेरिका को हौसियों ने रेड सी से निकाल बाहर किया है और दूसरे वहां से जो है अब किसी किस्म का कोई माल इसराइल की जानिब नहीं जा रहा, तो अब टैरिफ के हाल से, यानी टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर की ट्रेड इतनी मुतासिर होगी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। क्योंकि जो ट्रेड अमेरिका में आती है, अमेरिका में जो कंपनियां अपना माल भेजती हैं, भले वो यानी जिस तरीके से हो, ट्रेड का माल हो या दूसरी इन्वेस्टमेंट वो कर रही हैं, जो इन्वेस्टर है, जो बिलियनर है, वो काम कर रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद इतनी झटका लगा है कि उसके ट्रिलियन बिलियन डॉलर डूब चुके हैं। और वो बिल्डर अब सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें। और जहां इन्वेस्टर के साथ ये सलूक ट्रंप ने पूरी दुनिया की कंपनीज पर ऐड किया है, तो वहां से इसको जो रिस्पांस आ रहा है, चाइना ने खुली ऑफर रखी है कि पूरे यूरोप को कि आप भी इस पर आए, एक साथ होकर इस पर टैरिफ आयद करें। दुनिया भर के ममालिक अब अमेरिका पर भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। आप सोचें कि जब अमेरिका पर टैरिफ लगेगा तो वहां पर जो एक आम आदमी है उस पर 6,000-7,000 अरब डॉलर महीना यानी सालाना पड़ेगा वो टैक्स की सूरत में। तो वहाँ जो है इकॉनमी में जो है वो गिरेगी और वो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो लोगों के वहाँ जो है कारोबार खतरे में पड़ गए हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो नौकरियां अपनी दांव पर लगा चुके हैं, छोड़ रहे हैं, और इन्वेस्टर तो डूब गया है। ऊपर से अब यूरोप की मीटिंग में ये बात तय हुई है कि वो भी जाकर बड़े पैमाने पर अमेरिका पर टैरिफ आयद करेंगे। वाजे करता चलूं कि चाइना ने पूरी दुनिया के ममालिक को ऑफर कर दिया है कि अमेरिका का ट्रेड जंग में मुकाबला करने के लिए मेरे साथ खड़ा हो जाओ। आपको पता होगा कि चाइना के पास ऐसी फैसिलिटीज है कि अगर अमेरिका उसकी कंपनियों पर टैक्स लगाता है तो उसके पास छोटी छोटी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर काम करती हैं और उससे वो अपना ट्रेड पूरा कर लेती हैं। तो अब जो सूरत हाल है, ये तमाम मुल्क अब चाइना के ग्राफ में कहीं ना कहीं खड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो सोचें कितनी बड़े पैमाने पर जाकर अमेरिका पर टैक्स आयद करेंगे, क्योंकि इसने तो धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरे कंट्रीज जितनी भी हैं उनके साथ ट्रेड वार छेड़ दी है। अब जो सूरत हाल आगे बनने जा रही है, आप अंदाजा करें कि पूरे ईयू के कंट्रीज और मिडल ईस्ट के कंट्रीज, इन पर जो असर पड़ा है और इसकी जद में जो मुल्क आए हैं, अब चाइना ने यानी ऑफर किया इन तमाम को कि जो बर्क्स था इदारा उसको बहाल किया जाए। इसके खिलाफ स्टैंड लेने के लिए, यानी अमेरिकी सदर के टैरिफ वार से मुकाबला करने के लिए बर्क्स को बहाल किया जाए और वहां पर ऐसे फैसले लिए जाएं जिनसे अमेरिका पर टैरिफ आयद हो और अमेरिका जो मुख्तलिफ कंपनियों से पूरी दुनिया की ट्रेड को मुतासर कर रहा है, अमेरिका को भी इसका सामना करना पड़े। याद रखिए, इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने इकदाम किया है, इसमें चाइना हो, रशिया हो, इसमें और भी कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें उसने अपने साथी ममालिक हैं जो उनको भी नहीं छोड़ा। और चाइना ने अब जाकर एक ब्रिक्स जो है वो तमाम कंट्रीज को ऑफर की है कि वो उसको बहाल करे और इस की बहाली के बाद जो फैसले हों और ट्रेड में अमेरिका का, यानी ट्रेड वार में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मैदान
जंग यानी सज चुका है, सजने जा रहा है। तो आप अंदाजा करें अगर ये तमाम ममालिक चाइना के साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो चाइना कितनी बड़े पैमाने पर कितनी एटम वहां पे भेजता है। और चाइना अगर वहां इन्वेस्टर को नहीं देगा तो चाइना तो अपना गुजारा कर लेता है, क्योंकि उसने मुख्तलिफ ममालिक में जो है अपनी ट्रेड को यानी चला रखा है। अगर वहां माल नहीं जाएगा अमेरिका में तो आप सोचे कितनी किस कदर अमेरिका में बेरोजगारी होगी और कितनी बड़े पैमाने पर तबाही होगी। चीन में जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो अपनी ट्रेड को हर सूरत बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निक है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ से ईरान पर जंग छेड़ दी है यानी, और दूसरी तरफ टैरिफ की वार भी पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ छेड़ दी है। अब देखिएगा कि इसमें जो सूरत हाल अमेरिका के लोगों को होगी वो कितनी बड़े पैमाने पर डैमेज हो रहे हैं कि जो गाड़ियां वहां पे जाती थी उनके जो टैक्स उन पर आयद हुआ है टैरिफ, तो उसके बाद वो गाड़ियां अब वहां नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर है बिलनर है वो नहीं खरीदेगा। एक तरफ से अमेरिका ने ट्रेड वार छेड़ दी है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ईरान पर हमला करने वाले हैं। असल में ये गेम इसराइल की है, वो हर सूरत में ईरान के खामनाई को टारगेट करना चाहता, क्योंकि मिडल ईस्ट के पूरे जो लीडर हैं वो तो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, लेकिन खामनी उन अमेरिका और इसराइल के हाथ में नहीं आ रहा। तो अब ये खामनई को भी टारगेट कर सकते हैं। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।